My lovely students, welcome to Mathological. Let us discuss sixth set on decision making from ZAT 2024. ABC Business School was a school with a difference, regarded as one of the top business schools in Western India, but relatively unknown beyond that. The school catered to smaller organizations seeking to hire students for sales and marketing positions with occasional openings in HR roles. These students were open to secured job opportunities even if they offered relatively low salaries. So these students were open to secured job opportunities even if they offered relatively lower salaries. The organizations that recruited from ABC did not really care for the talent. So their concern was lesser about talent but appreciated the students' ability to follow instructions, follow orders without questioning. The school's strength laid in its alumni base, who consistently returned to the institution for a recruitment, thereby ensuring the school's continued existence. Alumni, they came back for recruitment consistently. So that is how the school has ensured its continued existence. Given the placement record, the school attracted a specific segment of business school aspirants who wanted a solid job, but were not excited about learning. Recently, some alumni of ABC threatened that their children should be given preference in admissions or they would withdraw as recruiters. Okay, they should be given preference in admissions or they would withdraw as recruiters. Okay. The director was, however, hesitant about allowing alumni to interfere in running the school because the fairness of the admissions process had earned ABC high respect. So fairness of the admissions process is important for them because it has earned them high respect with the corporate world that recruited from the school. And here the alumni are threatening them that their children should be given preference. So the first question is, which of the following reasons, if true, will best help the director not to worry about pandering to these alumni? Which of the following reasons, if true, best help director not to worry about pandering to these alumni? पैंडरिंग यानी प्रेशराइज होके जो बातें कह रहे हैं उनमें आ जाना, ठीक है, जो कह रहे हैं उसमें आ जाना, यानी कि दे आर सेइंग दैट देयर चिल्ड्रन शुड बी गिवन प्रेफरेंस. सो क्या वो प्रेशर फील करना चाहिए डायरेक्टर को? नहीं फील करना चाहिए. द क्वेश्चन इज सेइंग कि हमें ऐसा स्टेटमेंट चूज करना है सो दैट डायरेक्टर हैज नथिंग टू वरी अबाउट. ठीक है, अबाउट द एलुमनाई. ठीक है, एलुमनाई को प्रेशराइज कर रहे हैं बिकॉज एलुमनाइज आर द वंस हु आर कंसिस्टेंटली रिटर्निंग टू द स्कूल फॉर रिक्रूटमेंट and they are ensuring that the school is continuing existing and the placements are done. ठीक है, so alumni placement में एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. दैट इज वाई alumni की बात को सुनना भी जरूरी है. ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट ऐसा होगा जिसके थ्रू वी कैन से कि कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, पैंडर करने की जरूरत नहीं है, उनको ग्रेटिफाई करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना हमारा काम हो जाएगा. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एबीसी को alumni की जरूरत नहीं है. समहाउ अगर alumni को भी एबीसी के रेपुटेशन की ज़रूरत है या एबीसी के वैल्यू की ज़रूरत है तो डेफिनेटली इन दैट केस क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है. तो हमें क्यों प्रेशराइज होना है? फर्स्ट स्टेटमेंट, एलुमनाई वर द रीजन दैट एबीसी वाज एबल टू अट्रैक्ट कॉर्पोरेट्स. वेरी इंपॉर्टेंट, एलुमनाई आर द रीजन दैट एबीसी वाज एबल टू अट्रैक्ट कॉर्पोरेट्स. सो इफ एलुमनाई आर द रीजन देन एबीसी इज डिपेंडेंट ऑन एलुमनाई. एज पर दिस स्टेटमेंट एबीसी इज डिपेंडेंट ऑन एलुमनाई, हैवीली डिपेंडेंट. और अगर डिपेंडेंट है तो प्रेशराइज होना पड़ेगा, तो वरी करना पड़ेगा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज ये तो अपोजिट इंप्लाई कर रहा है कि इफ एबीसी इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन एलुमनाइज देन डेफिनेटली द डायरेक्टर हैज टू लिसन टू एलुमनाइज. सेकंड वन, सम ऑफ द एलुमनाई वर रेगुलरली टीचिंग एज गेस्ट फैकल्टी इन द स्कूल. नाउ सम ऑफ द एलुमनाई आर रेगुलरली टीचिंग एज गेस्ट फैकल्टी. तो यहाँ पे क्या जो हमारा इशू एट कंसर्न क्या है कि डायरेक्टर को प्रेशराइज होना है या नहीं होना है. ठीक है, तो सेकंड वाला कहाँ रेलेवेंट है? नॉट रेलेवेंट. तो दिस इज इररेलेवेंट एज सच. Third one, the alumni depended upon ABC's success to enhance their employability. Alumni depend upon ABC's success. So ABC's success is important for them to enhance their employability. So both are interdependent. Both ABC school as well as alumni are interdependent. Both are interdependent on each other. सो एबीसी स्कूल का रेपुटेशन बना रहा है, ये इंपॉर्टेंट है एलुमनाई के लिए बिकॉज तभी एलुमनाई का भी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो इनहेंस होगा. सो इवन इफ डायरेक्टर डज नॉट पेंडर टू देयर डिमांड्स, स्टिल बिकॉज नॉट पेंडिंग टू देयर डिमांड्स विल इंश्योर दैट एबीसी's हाई रिस्पेक्ट इज मेंटेन्ड. एंड इफ हाई रिस्पेक्ट ऑफ एबीसी इज मेंटेन्ड, इन दैट केस their recruitments will be, their placements will be as good
as it is. ठीक है, so definitely they both are dependent on each other, so director should not be worrying about pending to these alumni because they both are dependent, isn't it? So the third option seems decent. ठीक है, सेकंड तो irrelevant था, होल्ड पे रखते हैं. फोर्थ वन, नो बिजनेस स्कूल इन द रीजन हैज अलाउड alumni any say in managing the operations. So no business school as such in the region has allowed alumni any say in the management of operations. ठीक है, so is it reason enough to stop worrying? ठीक है, ऐसा हुआ नहीं है, किसी और स्कूल में नहीं हुआ है, तो क्या यहां नहीं हो सकता? ठीक है, तो प्रेसिडेंट नहीं है इस बात का, ये तो कह रहा है कि देयर इज नो प्रेसिडेंट एज सच, किसी और स्कूल में नहीं हुआ है, बट यहां तो हो सकता है ना स्टिल. सो दिस इज नॉट द रीजन इनफ एंड डेफिनेटली 3 इज मच बेटर. फिफ्थ वन, ABC हैज नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम द एलुमनाई टिल डेट. अब ये बात कर रहा है पास्ट की, कि जो चीज पास्ट में नहीं हुई क्या वो आगे नहीं हो सकती? तो पास्ट इज नॉट प्रेजेंट. वो अलग बात थी, आज की बात और है. ठीक है, सो अब तक प्रेशराइज भी नहीं किया था, थ्रेटन भी नहीं किया था एलुमनाई ने, आज थ्रेटन कर रहे हैं. सो आज इसके बारे में सोचना पड़ेगा. नॉट द करेक्ट आंसर. सो अमंग द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन 3 इज द best available option. Alumni depend upon ABC success, so both are interdependent, both are connected on each other. That is why worry करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टर को. ठीक है, जो कर चल रहा है उसको चलने दो वैसे ही. Is that clear? कि among the given options third is the best one. फर्स्ट तो एब्सोल्युटली इररिलेवेंट है बिकॉज उल्टी बात कर रहा है. फर्स्ट में तो वरी करने की जरूरत है इनफैक्ट. सेकंड इररिलेवेंट है. फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ बात कर रहा है कि कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है पूरे रीजन में, बट पूरे रीजन में नहीं है डज नॉट मीन कि ABC स्कूल को ऐसा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, फिर भी करना पड़ सकता है इफ एलुमनाइज आर प्रेशराइजिंग एंड दे आर हेवीली डिपेंडिंग ऑन एलुमनाइज. फिफ्थ वन इज सेइंग कि पास्ट में ऐसा नहीं हुआ है, बट दैट इज नॉट श्योर कि प्रेजेंट में भी नहीं होगा या फ्यूचर में भी नहीं होगा. ठीक है, तो वरी करने की तो जरूरत बनती है फिर भी. तो थर्ड इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन among the given. Second question, across the country business schools were ranked by popular magazines. A few business schools in the same region were applying for rankings. They are applying for rankings hoping that their rankings will affect their visibility among corporate houses and recruiters. To achieve a good rank, ABC faculty members who have primarily focused on teaching thus far would need to actively engage in research and consulting. ठीक है, to achieve a good rank, ABC faculty members who are primarily focused on teaching would need to actively engage in research and consulting. तभी ranking अच्छा होगा. The director was aware that asking the faculty to switch to research and consulting would not be easy. Which of the following facts will best help the director not to worry about applying for rankings? फिर से अब वरी नहीं करना है किस बारे में? रैंकिंग्स के लिए वरी नहीं करना है. तो क्या ऐसा रीजन होगा जो डायरेक्टर को सेटिस्फाई कर दे कि वरी करने की जरूरत नहीं है, वरी नॉट पे भी काम चल जाएगा अपना. ठीक है, सो वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट अप्लाइंग फॉर रैंकिंग्स. डायरेक्टर हैज नॉट टू वरी अबाउट अप्लाइंग फॉर रैंकिंग्स. तो क्या ऐसा रीजनिंग मिल जाए उसको कि रैंकिंग्स क्यों कर रहे हैं, रैंकिंग्स में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बिजनेस स्कूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रैंकिंग्स. व्हाई? बिकॉज दे होप that rankings will affect their visibility among corporate houses and recruiters. So basically placement is the reason why they are participating in the rankings. So अगर बिना रैंकिंग्स के हमारा प्लेसमेंट डिसेंट है या प्लेसमेंट में पार्टिसिपेशन डिसेंट है या प्लेसमेंट डिसेंट हो जाएगा फॉर श्योर, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं होगी. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एलुमनाई डू नॉट फॉलो रिसर्च पब्लिकेशन इन जनरल. एलुमनाई से यहाँ पे मेंशन क्या है? बिकॉज 3 ऑप्शंस आर मेंशनिंग एलुमनाई एलुमनाई एलुमनाई. एलुमनाई इंप्लाइज रिक्रूटर बेस बिकॉज दे आर कमिंग बैक टू ABC फॉर रिक्रूटमेंट. तो एलुमनाई इज रिक्रूटर बेस. ठीक है, तो रिक्रूटर बेस हमारा जो एलुमनाई है दे डू नॉट फॉलो रिसर्च पब्लिकेशन इन जनरल. बट द पॉइंट इज कि अगर रैंकिंग्स के लिए अप्लाई करना है तो एलुमनाई फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं दैट इज अनइंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉर ए गुड रैंक फैकल्टी मेंबर्स हैव टू फोकस ऑन रिसर्च एंड कंसल्टिंग बिकॉज द पॉपुलर मैगजीन्स फॉलो रिसर्च पब्लिकेशंस फॉर गुड रैंकिंग्स. दे चेक दैट. ठीक है, सो एलुमनाई फॉलो नहीं भी कर रहे हैं तो भी क्या फर्क पड़ता है? मैटर फॉर रैंकिंग्स. ठीक है, रिसर्च पब्लिकेशंस मैटर फॉर रैंकिंग्स. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट because even if alumni do not follow the research publications, those popular magazines are following and they are deciding rankings based on them. So that is why the director should worry about rankings. ठीक है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है कि डायरेक्टर को वरी करना चाहिए नहीं वरी करना चाहिए, बिकॉज ये हमें बात किसके बारे में कर रहा है? रैंकिंग्स के बारे में, रिसर्च पब्लिकेशंस के बारे में. तो एक हिडन मतलब हिडन इन द सेंस कि डायरेक्टली इशू को एड्रेस नहीं कर रहा है, नॉट एड्रेसिंग द इशू एज सच. तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. सेकंड वन, alumni do not care for the teachers or classes in general. Even if they do not, तो रैंकिंग्स तो वरी मैटर करेगा ना. वाई शुड डायरेक्टर नॉट वरी अबाउट रैंकिंग्स? नॉट करेक्ट, बिकॉज नॉट एड्रेसिंग द इशू. द एलुमनाई आर अवेयर दैट ABC ऑफर्स अ रिटेनेबल टैलेंट पूल. नाउ दिस इज टॉकिंग अबाउट रिटेनेबल टैलेंट पूल.
a talent pool that is retainable. ठीक है, so if ABC is offering a retainable talent pool and alumni are aware of that, basically recruiter base is aware of that, then they are satisfied about the placements, isn't it so? Then मामला sorted है, तो 3 को होल्ड पे रखते हैं. Fourth one, ABC's placement in the previous year were completed in 4 days. Now this is also saying good things about placement, that they they do not need to worry much about it because their placements in the previous year were completed in 4 days. इसको भी होल्ड पे रखते हैं. Fifth one, ABC could never break into the top 40 ranks in the country when it applied earlier. तो earlier जब apply किया, they were not able to break into top 40 ranks in the country. So this is concerning. In fact, cause of worry है. Cause of worry है because challenge है कि अब तक नहीं आया तो आगे क्या, अगर अप्लाई करेंगे तो टॉप 40 में आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे. सो दिस इज डूइंग क्वाइट द अपोजिट. तो फिफ्थ वाला तो एक्जैक्टली ऑपोजिट काम कर रहा है. डायरेक्टर को हमें वो चूज करना ऑप्शन जहां से कि वो वरी ना करना पड़े उसको, इसकी वजह से तो वरी करना पड़ेगा साइन. तो फिफ्थ को फिर रिमूव कर देंगे हम लोग. ठीक है, चूज करना है हमें थर्ड और फोर्थ में से. और हमारा कंसर्न क्या है कि डायरेक्टर help the director not to worry about applying for rankings. Third is saying alumni are aware that ABC offers a retainable talent pool, and fourth is saying ABC's placement in the previous year were completed in 4 days. So which of these two should we choose? इन दोनों में से कौन सा हम चूज करें? ठीक है, सो जो फोर्थ वाला है that is saying something positive about rankings. Isn't it so positive for rankings because placements हमारे 4 days में फिनिश हो गए ABC के. ठीक है, बट पास्ट की बात है. Isn't it so? हमें 3 और 4 में से किसी एक को चूज करना है. तो रैंकिंग किसके लिए रिलेवेंट है? रिक्रूटर्स के लिए रेलेवेंट है. रैंकिंग क्यों करानी है हमको भाई? रैंकिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है? रैंकिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर रिक्रूटर्स, रेलेवेंट फॉर रिक्रूटर्स, और रिक्रूटर्स आर मोस्टली एलुमनाइज. तो एलुमनाइज के लिए रेलेवेंट है. एंड इफ एलुमनाइज आर अवेयर दैट एबीसी ऑफर्स अ रिटेनेबल टैलेंट पूल, तो फिर क्या जरूरत है रैंकिंग्स की? If they are aware that ABC offers a retainable talent pool, तो sufficient है, काम बन जाता है अपना. Third should be better option between 3 and 4. बाकी ऑप्शंस तो देखो वैसे इनकरेक्ट है. Between 3 and 4, third is the better option. Because fourth हमें क्या बता रहा है? ABC's placement in the previous year were completed in 4 days. तो 4 days में प्लेसमेंट कंप्लीट हो गए, बट इसके अलावा बहुत एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है. ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा नहीं पता. फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन. ठीक है, और पास्ट में ऐसा हुआ 4 डेज में कंप्लीट हो गए, बट आगे अगर बाकी स्कूल्स रैंकिंग पे एम्फसाइज कर रहे हैं और अगर रिक्रूटर बेस भी रैंकिंग्स पे एम्फसाइज करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना. तो दैट इज वाई एलुमनाई आर अवेयर, यानी कि रिक्रूटर बेस हमारा अवेयर है दैट एबीसी ऑफर्स अ रिटेनेबल टैलेंट पूल. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देन द फोर्थ वन. दैट इज वाई थर्ड शुड बी द आंसर. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. A few faculty members complained to the director regarding the lack of attendance. So attendance is the issue and seriousness among the students. Many students during classes and exams. The director knew that this had been the case for decades. ऐसा ही होता रहा है, but it became more rampant in the last few years. He was also aware that the classes were mostly rituals conducted to tell the world that ABC believed in education and had little bearing on placements. However, he believed that the students must be told to attend classes and take exams with serious attitude. अब क्या कैसे सॉल्व करेगा इस प्रॉब्लम को डायरेक्टर? बिकॉज प्रॉब्लम क्या है हमारा? lack of attendance and seriousness among the students. Which of the following announcements by director will best ensure that faculty stop complaining about student attendance? तो क्या हमारा स्टेप हो सकता है जिससे कि फैकल्टी स्टॉप कर दे कंप्लेन करना? अगर अटेंडेंस होना शुरू हो जाए तो फैकल्टी स्टॉप कर देगी कंप्लेन करना. तो सम हाउ डायरेक्टर शुड इंश्योर दैट अटेंडेंस होना शुरू हो जाए इन द क्लासेस. फर्स्ट वन, स्टूडेंट्स हु अटेंड एवरी क्लास शुड बी गिवन थैंक यू नोट्स फ्रॉम द डायरेक्टर. अभी गांधीगिरी वाला सोल्यूशन हो गया. थैंक यू नोट्स देना शुरू कर दे. क्या इफेक्टिव होगा? ये कतई इफेक्टिव नहीं होगा. ठीक है, सो सीम्स अ गुड गेस्चर बट दैट्स ऑल, अ गुड गेस्चर ओनली, तो वोंट बी इफेक्टिव. सेकंड वन, स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू पे अ मॉनिटरी पेनाल्टी फॉर मिसिंग क्लासेस. नाउ सिंस यहाँ पे फाइनेंशियली तुम उनको पनिशमेंट दे रहे हो तो डेफिनेटली मोर इफेक्टिव देन द फर्स्ट वन. थैंक यू नोट से तो ज़्यादा ही काम करेगा. ठीक है, सो वन से तो बेटर ही है, बट क्या ये बेस्ट होगा? देखते हैं आगे के ऑप्शन कुछ देखते हैं. Faculty members who make classes very engaging should be felicitated during the convocation. Now again, even if they make the classes very engaging, we know that classes were mostly rituals, ठीक है, conducted to the word. और ऐसे जो स्टूडेंट्स भी हैं जिनके बारे में हमने देखा इन द स्टार्ट, ठीक है, कि स्टूडेंट्स का फोकस क्या है? फोकस इज ऑन सॉलिड जॉब्स एंड दे आर लेस एक्साइटेड अबाउट अर्निंग, नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट लर्निंग. तो लर्निंग पे उनका फोकस नहीं, उनका फोकस किस पे है? अर्निंग पे है, लर्निंग पे फोकस नहीं है. तो इवन इफ क्लासेस आर मोर एंगेजिंग, तो क्या हुआ? उनका आना इंश्योर हो जाएगा? नहीं इंश्योर होगा इवन आफ्टर दैट, बिकॉज देयर फोकस ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑन अर्निंग
फोकस ऑन अर्निंग नॉट लर्निंग। किसका? स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो फिर वो आएंगे क्यों? नहीं आएंगे, तो स्टिल इट वोंट बी इफेक्टिव। फोर्थ वन, ओनली स्टूडेंट्स विद एटलीस्ट 85% क्लास अटेंडेंस विल पार्टिसिपेट इन प्लेसमेंट्स। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उनका फोकस किस पे है? अर्निंग पे है, और प्लेसमेंट यानी कि अर्निंग। सो उनकी अर्निंग पे ही डायरेक्टली अफेक्ट कर दो कि अगर 85% से कम अटेंडेंस हुआ तो प्लेसमेंट में ही नहीं बैठ पाओगे। सो दिस इज वेरी इफेक्टिव बिकॉज then you are connecting their attendance, class attendance with placements. Now they both are connected. और प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स आर कंसर्न, सो दे विल बी कंसर्न अबाउट अटेंडेंस एज वेल। सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, डेफिनेटली बेटर देन द सेकंड वन। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा मॉनिटरी इंसेंटिव तुमने दे दिया। अब इसके सामने सेकंड वाला क्या है? फिफ्थ वन, स्टूडेंट्स शुड बी रिवार्डेड फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू इन क्लास डिस्कशंस एंड लर्निंग। नाउ अगेन दे आर नॉट फोकस्ड ऑन लर्निंग्स। तो तुम ये सब जो कंट्रीब्यूशन के लिए कह रहे हो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो आएंगे ही नहीं तो कंट्रीब्यूट क्या करेंगे? तो फोर्थ वन इज द बेस्ट ऑप्शन। फोर्थ वन इज द बेस्ट ऑप्शन। ये कनेक्ट कर दिया प्लेसमेंट्स को अटेंडेंस से, सो अटेंडेंस भी इंश्योर हो जाएगा क्योंकि प्लेसमेंट तो कंसर्न है ही है उनका, स्टूडेंट्स का। ठीक है, सो बेस्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्या ये पार्ट क्लियर है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेट। आई बिलीव जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए समझ में होंगे और सारे के सारे सॉल्यूशंस क्लियर होंगे। इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर इन एनी क्वेश्चन, मेक श्योर टू पॉइंट आउट द डाउट एंड बी ओपन टू डिस्कशन। ठीक है, कोई भी तुम्हारा डाउट है किसी भी ऑप्शन में तुम्हें लगता है कि यहाँ पे ये एक और चीज़ था जिसको ऐड किया जा सकता था, जिसको सोचा जा सकता था, तो मेक श्योर टू मेंशन अबाउट दैट एज वेल। एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, subscribe to the channel as well. That is all for this session. Bye bye, take care and keep learning.